بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ عورت اور مرد کی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں افعال کے اندر کچھ فرق ہے جو روایات کے اندر بیان ہوا ہے۔ ہم جس فعل میں فرق ہے اس کو روایت کے ذریعے بیان کریں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری سنیں اور کم از کم اپنی بچیوں کو یہ طریقہ بتائیں اور یہ سمجھیں کہ فرق ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ عورت کے باقی افعال تو ایک سائڈ پہ رکھیں، عورت کا جو پردہ ہے وہ بھی مرد سے زیادہ ہے نماز میں، عام حالت میں بھی زیادہ اور نماز میں بھی زیادہ ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، مرد کے لیے تو قدموں کا چھپانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے قدموں کے چھپانے کی روایات موجود ہیں، اور انہی روایات کی بنا پر بعض علماء قدموں کو نماز کے اندر چھپانے کے قائل ہیں۔ جس طرح کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مصنف عبد الرزاق، اس کی تیسری جلد، یہ صفحہ 401 ہے۔ اس میں روایت کی گئی ہے، محمد ابن ابی بکر اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے سوال کیا حضرت ام سلمہ سے، فی کم تصلی المرأۃ، کتنے کپڑوں کے اندر عورت نماز پڑھے؟ قالت، آپ نے فرمایا، فی الخمار، ایک سر کو ڈھانپنے والی چادر، والدرع السابغ الذی یغیب ظہور قدمیہ، اور فرمایا ایک بڑی چادر ہو جو اس کے قدموں کے ظاہری حصے کو بھی چھپا دے، ظاہری حصے کو بھی۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت نماز کے اندر جہاں پر سر کو ڈھانپے گی تو اگر اس کے پاس ایک اور چادر ہے، ایک ہی چادر ہے، تو وہ اتنی بڑی ہو کہ اس کے قدموں کا ظاہری حصہ بھی چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح مرد کے لیے بال سارے چھپانا یہ نماز کے اندر کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اگر بالکل ہی ننگے سر نماز پڑھ لی کبھی، مکروہ ہے لیکن حرام، لیکن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے بال چھپے ہوئے نہیں ہیں تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے 402 نمبر صفحے کے اوپر حضرت عبد الرزاق کے معمر سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انہوں نے حضرت اکرمہ سے روایت کی، لو اخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء اجزاء عنها مکان الخمار۔ آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ اس کے سر کے بال بھی جو ہیں ان میں سے کچھ نظر نہیں آتا، تو سر کو ڈھانپنے والی چادر کی جگہ وہ ایک کپڑا ہی کیا ہے، کفایت کرے گا۔ اسی طرح عورت کے کانوں کا چھپانا بھی نماز میں جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ اسی کتاب کی مصنف عبد الرزاق کی 405 نمبر صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرزاق یہ معمر سے، وہ قتادہ سے، انہوں نے حضرت ابن سیرین سے روایت کی، کارہا ان تصلی المرأۃ واذنها خارجۃ من الخمار، عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اس کے کان جو ہیں اس کے چادر سے باہر ہوں۔ ٹھیک، یہ دیکھیں یہاں پر کانوں کا چھپانا بھی۔ اور اسی طرح ایک روایت یہاں پر مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عورت نماز پڑھے اور اپنے سر کو نہ ڈھانپے تو اس عورت کی اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ یہ حضرت عمر حسن سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما جاریت حاضت فلم تختمر لم يقبل اللہ لها صلاۃ
जो कोई भी औरत बालिगा हो जाए, बस बालिग होने के बाद अगर वो सर का पर्दा नहीं करती, चादर नहीं रखती, अपने सर को चादर से नहीं ढांपती, लम यक़बलिल्लाहु लहा सलातन, अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पर अगर उसने चादर नहीं रखी हुई, सर को नहीं ढांपा हुआ, तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। तो ये देखें, पर्दे के अंदर ही नमाज में जो सतर है, सतर एक शर्त है, उस शर्त में ही औरत मर्द से मुख्तलिफ है, और बाकी जो अफ़आल हैं उनको भी हम अब दर्जा बदर्जा बयान करते हैं। सबसे पहले इसको ले लीजिए कि औरत जो हाथ उठाएगी तो कहाँ तक उठाएगी। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की दूसरी जिल्द मेरे हाथ में है, किताब उस्सलात सफ़ा नंबर 22 पर एक रिवायत मौजूद है। हद्दसना मुहम्मद इब्न बकरिन अन इब्न जुरैज क़ाल क़ुल्तु लिअताई। ठीक है, मुहम्मद इब्न बकर उन्होंने रिवायत की इब्न जुरैज से। इब्न जुरैज कहते हैं, मैंने हज़रत आता से पूछा, तुशीरुल मरअतु बियदैहा बितकबीरि कर्रजुली, कि जो औरत है वो तकबीर कहते हुए हाथ का इशारा मर्द की तरह करेगी। क़ाल ला तरफ़अ बिज़ालिका यदैहा कर्रजुली, आपने फरमाया वो ना उठाए अपने हाथ को मर्द की तरह। व अशारा फ़हफ़ज़ यदैहि जिद्दन व जमअहुमा जिद्दन, फिर आपने इशारा करके बताया और इशारा किया और अपने हाथों को झुकाया और फिर जमा कर लिया, उन हाथों को जमा कर लिया। और फरमाया इन्ना लिल मरअती हैअतन लैसत लिर्रिजाली, कि बेशक औरत के लिए एक ऐसा तरीका है जो मर्द के लिए नहीं है। हाँ, ये बात कही है, व इन तारकत ज़ालिका फला हरज, अगर इसको छोड़ दे तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि नमाज में भी औरत जितना अपने जिस्म को जमा करना चाहे जमा करेगी, ये आगे रिवायत आएगी, इसलिए औरत के लिए पूरे हाथ उठाने से ये इस तरह हाथ उठाना जो है बेहतर है अपने सीने तक। इसी तरह हजरत आसिम इब्न अहबल बयान करते हैं, उन्होंने फरमाया रअयतु हफ्सा बिन्त सीरीना, मैंने हफ्सा बिन्त सीरीन को देखा, कब्बरत फी सलाती व औमाअत हज़वा सदयैहा, उन्होंने क्या किया, हफ्सा बिन्त सीरीन ने, उन्होंने नमाज की तकबीर कही और अपने हाथों का इशारा अपने सीने के बराबर किया। ठीक, तो इससे पता चला कि औरत जो है नमाज पढ़ते हुए अपने हाथ सीने तक उठाएगी। एक रिवायत में कंधे की रिवायत भी आई, कंधे की भी रिवायत आई है और सीने की रिवायत भी आई। अब आ जाइए जरा क़याम की तरफ। तो क़याम में भी औरत सिमट कर खड़ी होगी। ठीक, हम तो नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं मर्द, लेकिन औरत अपने हाथों को जितना अपने जिस्म के साथ मिलाकर रखेगी, उसे कहा गया है कि वो सही है। ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक मेरे हाथ में है, जिल्द नंबर 3 है। इसके सवा 408 के अंदर रिवायत मौजूद है इस बारे में। अब्दुल रज़ाक ये रिवायत करते हैं इब्न जुरैज से, और इब्न जुरैज वो रिवायत करते हैं हज़रत अता से। हज़रत अता फरमाते हैं, तजमाउल मरअतु यदैहा फी क़ियामिहा मस्तताअत, कि औरत अपने हाथों को क़याम की हालत में, यानी जब नमाज में खड़ी है तो क़याम की हालत में जितना हो सके जमा करके रखेगी, यानी अपने जिस्म के साथ मिला कर रखेगी। तो अब आप देख लीजिए कि अगर इस तरह हाथ बांधे तो इसमें हाथ मिलेंगे या ऐसे सीने पर हाथ बांधे। हमारी फिक़ह की किताबों में भी ये लिखा हुआ है, जहां पर कहा है कि औरत सीने पर हाथ रखे तो वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि सीने पर हाथ रखना ये औरत के पर्दे के एतबार से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब जरा आ जाइए औरत के सजदे और रुकू की तरफ। यही
मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक तीसरी जिल्द 408 सफ़े पर ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल रज़ाक ये इब्न जुरैज से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अता से। हज़रत अता फरमाते हैं तजतमिउल मरअतु इज़ा रकअत तरफ़उ यदैहा इला बत्निहा, कि औरत जो है जब रुकू करेगी तो अपने हाथों को उठाकर अपने पेट के साथ मिला लेगी। ठीक है, अपने बाजू मिला लेगी, जिस तरह हम खोल के रुकू करते हैं इस तरह नहीं, अपने पेट के साथ मिला। वतजतमिउ मस्तताअत, और जितनी वो इस्तिताअत रखती है इतने अपने हाथों को क्या कर लेगी, जमा कर लेगी। फैदा साजदत फलतजुम यदैहा इलैहा, और जब सजदा करे तो तब भी अपने हाथों को मिला लेगी। क्या है, मिला लेगी। व तजुम बतनहा व सदरहा इला फखिज़ैहा, और अपने पेट को और अपने सीने को अपनी रानों के साथ मिलाएगी। व तजतमी मस्ततात, और जितना चाहे वो अपने बदन को समेटेगी और जमा होगी, जमा करेगी अपने बदन को। ठीक है, तो ये देखें, मर्द तो सजदा करेगा कि बिल्कुल खोल के इस तरह अपने बाजू। आका अलैहिस्सलाम के सजदे के बारे में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते थे तो सहाबा फरमाते हैं इतना बाजू खोलते थे कि अगर बकरी का छोटा सा बच्चा भी हो तो वो भी नीचे से गुजर जाए। लेकिन औरत के लिए फरमाया कि इसके पर्दे के एतबार से बेहतर ये अफ़आल है कि वो अपने जिस्म को जितना मिलाकर रखेगी तो इसमें क्या होगा, इसका पर्दा होगा। फिर रुकू और सजदे की बात हो गई, अब तशहुद का मसला देख लीजिए। तशहुद के बारे में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की इसी दूसरी जिल्द के अंदर 72 नंबर सफ़े पर एक रिवायत मौजूद है। 72 नंबर सफ़े पर हद्दसना मुहम्मद इब्न बकरिन अन इब्न जुरैज क़ाल क़ुल्तु लिअताइन, मोहम्मद इब्न बकर वो रिवायत करते हैं इब्न जुरैज से, और इब्न जुरैज ने कहा मैंने हजरत अता से पूछा तजलिसुल मरअतु फी मसना अला शिक्किहिल अयसरी, कि औरत जब दो रकते पढ़ ले तो वह अपने बाएं पहलू पर बैठे, बाएं पहलू पर होकर बैठे। काला नाम, आपने फरमाया हाँ। कुल्तु, मैंने अर्ज की हुआ अहब्बु इलैका मिनल अयमन, आपको दाएं तरफ बैठने से ये ज्यादा महबूब है बाएं तरफ बैठना। काला नाम, आपने फरमाया हाँ। तजतमिउ जालिसतन मस्तताअत, हाँ कहकर फरमाया कि वो बैठने की हालत में जितना अपने जिस्म को जमा कर सकती है जमा करेगी और जमा होकर बैठेगी। कुल्तु तजलिसु जुलूसर रजुली फी मसना और तुखरिजु रिजलहुल युसरा मिन तहती इल्यतिही, मैंने पूछा कि दो रकतें पढ़कर जब वो बैठती है तो वो मर्द की तरह ही बैठ जाए या अपना बायां पांव अपनी सुरीन के नीचे से निकाल कर बैठे, जिस तरह के हमारी औरतें नमाज पढ़ती, बायां पांव अपनी सुरीन के नीचे से निकाल कर बैठे। काला ला यदुर्रुहा अय्यु ज़ालिका जलसत इज़ा इज्तमाअत, यहां आपने फरमाया उसे इन दोनों अमलों में से कोई नुकसान नहीं देता, जैसे भी चाहे वो बैठे, लेकिन शर्त यह है कि उसका जिस्म जो है वो जमा हो जाए, खुले ना, उसके पर्दे की कोई जगह। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि अगर औरत अपना बायां पांव ऐसे सुरीन के नीचे से निकाल कर बैठी हो तो उसमें उसका पर्दा ज्यादा है, या मर्द की तरह एक पांव इस तरह खड़ा करके दायां और बायां जो है बिछा कर बैठे तो इसमें पर्दा उसका ज्यादा है। तो जिसमें पर्दा ज्यादा है ऐसा ही अमल करेगी। आपने फरमाया दोनों अमलों में से कोई भी उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन शर्त यह है कि वो उसका जिस्म जो है वो जमा हो जाए और अपने जिस्म को वो जमा करके बैठे। तो इससे पता चला कि तशहुद में भी औरत के बैठने का जो तरीका है उसमें भी फर्क है। ठीक। अब ये यहाँ पर कयाम भी, हाथ उठाने का मसला भी आ गया, फिर कयाम का भी आ गया, रुकू का भी आ गया, सजदे का भी आ गया, तशहुद का भी आ गया। तो इन सारी रिवायात से हमें ये पता चलता है कि औरत की नमाज के अंदर कुछ अफ़आल में फ़र्क है। कलिमात वही पढ़ेगी जो मर्द पढ़ता है, लेकिन अफ़आल में फ़र्क है। अल्लाह ताला सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।